Hello guys, I'm Vishal Vora. Today I'm with All India Rank First in CA Foundation exam, and Mr. Punit will share all the tips related to CA examination preparation. So let's start, Punit. Please introduce yourself and please give some tips so the student can crack the CA exam perfectly. Hello guys, I got A1 in CA Foundation during December 2020 attempt. Now I am CA intermediate aspirant, or we can say I am waiting for result of CA aspirant, as I gave my exam in December 2021 of CA intermediate, and now I'm looking for articleship. So let's start with CA Foundation preparation. The strategies. So I would say that no strategy is perfect. कि आप कोई हर स्टूडेंट के हिसाब से हर strategy perfect है. आपको अपनी strategy बनानी पड़ेगी. And I would share some tips that you can make your own strategy and sometimes follow my strategy also. So I would share a screen about what I prepare for you about the strategy tips. So please enable screen sharing. Just a second. Now please check it out. So here, just wait a second. Is PPT visible? Yeah. Yeah. So let's start. Here CA Foundation study tips. Then first I would start with preparation tips. How can you prepare for CA Foundation examination? So firstly, paper first, principles and practice of accounting. So here we have 10 chapters. First chapter is a theoretical chapter. Here you should do here questions only come from theory on theory basis. They are I think there are 9 units in chapter first. 8 or 9 units in chapter first. You should read all details about all details that is given in chapter, but should not learn everything or mug up everything from chapter first. You should do that. आपको क्या है, जो बुक के पीछे जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस दे रखे होते हैं वो आपको पढ़ने हैं, लर्न करने हैं पूरे, है ना. और फिर आईसीआई मटेरियल है, उसमें एमटीपी एंड आरटीपी गिवन होते हैं. आईसीआई मटेरियल एक तो एसएम होता है, स्टडी मटेरियल, देन एमटीपी, आरटीपी एंड पास्ट ईयर पेपर्स भी वैसे. उसके आपको सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस करने हैं. ऐसा है कि सारे क्वेश्चंस एक बार पढ़ लिया, आपको सारे याद हो जाने चाहिए. देन उसमें क्योंकि लास्ट क्वेश्चन आता है वो थ्योरी पे बेसिस पे क्वेश्चन आता है, 6 क्वेश्चन आते हैं आपके अकाउंटिंग के पेपर में. देन वो लास्ट क्वेश्चन थ्योरी के बेसिस पे आता है. देन चैप्टर 2 में we have a accounting process that is in which includes unit first books of accounts, then preparation of trial balance, and then rectification of errors. So most questions come from the rectifications of errors. That is the important part of this chapter, in which you have some journal entries questions about rectifications. Then I would move forward to chapter 3, bank reconciliation statement. In this chapter you must do practice of different many questions about how to make from passbook balance, how to make DRS from passbook balance, and how to make DRS from cash book balance. Then I would come to inventory chapter. This is an important chapter of this second जो यहाँ पर वेटेज में सेक्शंस दे रखा है, सेकंड सेक्शन, उसमें मोस्टली वेटेज इन्वेंटरीज पार्ट से रहता ही रहता है. और इसके क्वेश्चंस ऐसा है कि फिक्स क्वेश्चंस आते हैं कि इस पैटर्न पे ही क्वेश्चन आना है. अब वैल्यूएशन, इसमें दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं इन्वेंटरीज में. देन फर्स्ट आता है क्वेश्चंस वैल्यूएशंस का, डिफरेंट बेसिस पे डिफरेंट मेथड्स होते हैं वैल्यूएशन के इन्वेंटरीज के, वो क्वेश्चन आता है. Then एक क्वेश्चन आता है रिकॉर्ड कीपिंग का. दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्वेश्चन, दैट एंड दैट इज मोस्टली आस्क्ड अबाउट क्वेश्चंस आर मोस्टली आस्क्ड अबाउट रिकॉर्ड कीपिंग, also on valuation methods, but mostly on record keeping. So this is an important part. You must remember the process, how to do questions of record keeping, and what is the concept about record keeping. Then moving forward to chapter 5, depreciation. In this chapter there are many methods of depreciation charging, and most important questions come from change in depreciation methods. That is the most important topic from this chapter.
And in change of depreciation methods, we do practice from ICSM. ICSM के questions normal रहते हैं. Then you do practice, mostly CA foundation student do practice of scanners. In a scanner, there is also questions given on retrospective method. That is hardly come, or I think it doesn't come in exam, क्योंकि because of ICA in retrospective method अभी हटा दिया आपके depreciation में से, केवल प्रोस्पेक्टिव मेथड चलता है, जिसमें आपको केवल जब चेंज हुआ है डेप्रिसिएशन मेथड में तभी से आपको डेप्रिसिएशन रेट लगानी पड़ती है. फिर भी आप स्कैनर में से एक बार रेट्रोस्पेक्टिव मेथड का क्वेश्चंस कर लीजिएगा, जिससे पता रहेगा कि कैसे क्वेश्चंस करते हैं. Then moving forward to chapter 6, accounting for special transactions. Here we have 5 units, or we can say 5 different chapters. Bills of exchange. Firstly, bills of exchange और promissory notes. इसमें क्या रहता है, आपके जनरल एंट्रीज आती हैं कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज की एंट्रीज कब करनी है. बिल्स ऑफ एक्सचेंज में भी बहुत सारे पार्ट होते हैं कि बिल जनरेट हुआ, देन एक्सेप्ट हुआ, फर्स्टली ड्रॉ हुआ, देन एक्सेप्ट हुआ, या फिर वो डिसऑनर हो गया, या फिर बहुत सारी चीज होती हैं जैसे बैंक में जमा करा दिया. तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज प्रॉमिसरी नोट्स में आपकी जनरल एंट्रीज आती हैं. सेल्स ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस, ये सबसे इजीएस्ट यूनिट है चैप्टर का अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजैक्शंस में. इसमें आपको जो भी कोई सेल एंड रिटर्न बेसिस पे आप करते हैं कि अगर आपको गुड्स अच्छा ना लगा, अप्रूवल नहीं दिया, तो आप वापस कर सकते हैं, तो वो वाली इसमें एंट्रीज आती हैं. देन इसमें लेजर अकाउंट्स भी आते हैं. देन कंसाइनमेंट एक बहुत अच्छा टॉपिक है. इसमें कंसाइनमेंट में मोस्टली अकाउंट्स बनाने को आता है. कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनी अकाउंट, देन कंसाइनर अकाउंट वगैरह. देन एवरेज ड्यू डेट एंड अकाउंट करंट, ये आपको नए टॉपिक है, आपने शायद पहले कभी नहीं पढ़े होंगे. एवरेज ड्यू डेट में आपको ड्यू डेट कैलकुलेशन होता है. अकाउंट करंट में आपको अकाउंट की इंटरेस्ट के साथ अकाउंट बनाना होगा. देन आते हैं हम फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर. फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर में मोस्टली एक तो अकाउंट्स आते हैं, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, देन बैलेंस शीट. ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट की आपको प्रैक्टिस कहां से करनी है? एक तो ICSM में क्वेश्चंस दिए होते हैं ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट के. देन उसके अलावा हमारे पास होता है स्कैनर में से पास्ट ईयर के पेपर्स के क्वेश्चंस. देन मोस्ट इंपॉर्टेंटली ICA का मटेरियल. ICA मटेरियल इंक्लूड्स MTP ऑफ ऑल द पास्ट अटेम्प्ट्स, RTP of all the past attempts, and PYP of all the past attempts. इसमें आपको फाइनल अकाउंट्स के इतने सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी. और मोस्टली जो ICA में जो मुझे अभी तक याद है, जो हमारा क्वेश्चन आया था मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का क्वेश्चन आया था. मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का क्वेश्चंस जो बुक में क्वेश्चन दे रखा है ICSM में, सेम वही क्वेश्चन आया था बट डिजिट्स चेंज. तो मोस्टली क्वेश्चंस फाउंडेशन लेवल पर ऐसे आते हैं जो आपने या तो ICA के मटेरियल में कहीं ना कहीं पे. ICA मटेरियल इंक्लूड्स SM, MTP, RTP एंड PYP. इसमें कहीं ना कहीं पर गिवन ऑलरेडी हुआ होगा. देन पार्टनरशिप अकाउंट में आप एक चीज ध्यान रखिएगा. पार्टनरशिप अकाउंट में आपको थ्योरी के क्वेश्चंस पे आते हैं. LLP वर्सेस पार्टनरशिप, अच्छा क्वेश्चन है. लास्ट यूनिट है शायद, आई थिंक LLP वर्सेस पार्टनरशिप वाली. उसमें LLP वर्सेस पार्टनरशिप के क्वेश्चन आता है. देन इट हैज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अबाउट मोस्ट स्टूडेंट्स अटकते कहां पर है. एक तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के बहुत सारे वैल्यूएशन मेथड्स होते हैं. देन एक होता है जॉइंट लाइफ पॉलिसी. मैं आपको इन दोनों की PDF शेयर करूंगा, जो मेरे नोट्स हैं उनसे आपको बहुत आसान हो जाएगा. देन NPO में रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने होते हैं आपको. या तो कभी एडिशनल इंफॉर्मेशन से अकाउंट बनाना होता है, कभी रिसीट अकाउंट दे रखा है, एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है, इनकम एक्सपेंडिचर बनाना होता है. कभी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर दोनों दे रखा होता है. बैलेंस शीट बनानी होती है फर्स्ट ईयर की, देन सेकंड ईयर की. ऐसा रहता प्रीवियस ईयर है, देन करंट ईयर की बैलेंस शीट बनानी होती है ना. और ये मोस्टली इसमें थोड़ा नोट्स में लिखना होता है आपको साथ में कि आपने कैसे एडजस्टमेंट किया है. ठीक है. देन हम आते हैं कंपनीज अकाउंट में फर्स्ट यूनिट है, वो फुल थ्योरी है. फर्स्ट यूनिट में फुल थ्योरी है, तो उस थ्योरी में से बहुत क्वेश्चंस, जो लास्ट क्वेश्चन आता है उसमें थ्योरी में से क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है. देन हम आते हैं सेकंड पर. ये हमारा है इश्यू ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स, फॉरफीचर ऑफ शेयर, रीइश्यू शेयर, फुल जनरल एंट्री बेसिस है. जनरल एंट्री का क्वेश्चंस आता है. ठीक है. और स्टेटमेंट ऑफ P&L और बैलेंस शीट, ये भी ये केवल इसका फॉर्मेट दे रखा है, इसका क्वेश्चंस नहीं आते. मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं यूनिट 2 में से. देन नेक्स्ट मूविंग फॉरवर्ड टू चैप्टर पेपर 2. It has law and business correspondence and reporting. So firstly business law.
It has Indian Contract Act, Sales of Goods Act, Indian Partnership Act, LLP Act and Companies Act. फर्स्टली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सबसे लंबा एक्ट है अपने इसमें फाउंडेशन लेवल पर। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 1 to 75 तक है, जो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन। ठीक है, तो इसमें क्या करना है आपको, आपको करना है सेक्शन नंबर की लिस्ट बनानी है। देन सेक्शन नंबर की लिस्ट से आपको फुल एक्ट याद रखना है सेक्शन नंबर की लिस्ट से। एंड देन आपको बनाना है केस स्टडीज। केस स्टडीज की टेबल बना लिस्ट बना लेनी है, कहाँ पर कौन सी केस स्टडीज दे रखी है कि रेफरेंस के काम आती है। इसमें से सबसे ज्यादा केस स्टडी आती है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से, और बहुत इजी रहता है, ज्यादा कठिन नहीं रहता। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, इसमें आपको केवल लर्न करना है, केस स्टडीज आती हैं वो बिल्कुल एग्जांपल जो बुक में दिए होते हैं उनके बेसिस पर आती है। सेल्स ऑफ गुड्स में भी मैं कहूंगा ज्यादा ऐसे सेक्शंस तो नहीं है, बट इसमें थोड़ी थोड़ी ज्यादा तो वो आराम से हो जाता है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट थोड़ा सा टफ पड़ता है, हल्का सा बिट लिटिल बिट टफ है, ज्यादा टफ नहीं है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में आपको सब कुछ याद रखना पड़ेगा, ज्यादा बार रिवीजन करना पड़ेगा, बस उतना है। एलएलपी, एलएलपी में बहुत सारा मटेरियल दे रखा है, आता है एक 6 नंबर का क्वेश्चन है जिसको आप छोड़ के भी आ सकते हो। ऑप्शन आते हैं क्योंकि ऑप्शन आता है एक क्वेश्चन उसमें लॉ में, देन उसको आप छोड़कर भी आ सकते हो एलएलपी क्वेश्चन। और मैं ये कहूंगा कि एलएलपी का फुल चैप्टर पढ़ने की बजाय केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो गिवन होते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स गिवन है, वो आप जहाँ से भी कोचिंग ले रहे हो, कोई भी टीचर है आपका, उनसे आप पूछ सकते हो एलएलपी के क्वेश्चंस कि क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केवल वो करके जाओ। मैं केवल 3 क्वेश्चंस करके गया था एलएलपी के, जिसमें से एक क्वेश्चन आ गया था, लक अच्छा था। ठीक है, देन कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट पर आते हुए कंपनीज एक्ट आपको फुल पढ़ना पड़ेगा, बेसिक्स दे रखे हुए। इंटर और फाइनल में आओगे, इंटर फाइनल में तो फुल कंपनीज एक्ट दे रखा है, इंटर में आधा कंपनी है, फाइनल में आधा कंपनी है। तो ऐसा है कि इसमें केवल बेसिक्स दे रखे हैं, ज्यादा कठिन नहीं पड़ेगा, बस थोड़ा बहुत जो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट है उसकी केस स्टडीज आती है वो थोड़ी समझनी पड़ेगी एक बार, वो आराम से हो जाएगा। देन हम आते हैं बीसीआर पर, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। सो बीसीआर में फर्स्ट क्वेश्चन आता है अपना कम्युनिकेशन का। कम्युनिकेशन में आपको मगअप करना है, मैं खुद कह रहा हूँ मगअप कर लो फुल चैप्टर, नो प्रॉब्लम। ठीक है, फुल चैप्टर को मगअप कर लेना ए टू जेड, क्योंकि उसमें से आई थिंक शायद हर क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आते हैं आपके बीसीआर में 10-10 नंबर्स के। फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी होता है पैसेज एंड नोट मेकिंग का, पैसेज एंड नोट मेकिंग फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी है। देन उसके बाद आता है 4 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन करने होते हैं, 40 मार्क्स का बीसीआर आता है। तो उस 3 क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन होता है अपना 2 मार्क्स का होता है शायद, कम्युनिकेशन का फर्स्ट क्वेश्चन होता है, तो आराम से वो 6 मार्क्स हो जाता है। ठीक है, 6 मार्क्स बहुत रहते हैं यार, कम नहीं है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन का चैप्टर भी ज्यादा बड़ा नहीं है, तो आराम से पूरा मगअप कर लेना। देन अपना क्वेश्चन आता है जो बाद के 4 क्वेश्चन आते हैं उसमें से अपन आते थे वो फर्स्ट कम्युनिकेशन आता है। देन वॉइस एंड स्पीच का क्वेश्चन रहता है उसमें। ठीक है, उसमें फिर रहता है एक वोकैब का क्वेश्चन, एंड देन रहता है एक राइटिंग का क्वेश्चन, बाद के 4 क्वेश्चन। और फर्स्ट क्वेश्चन पैसेज एंड नोट मेकिंग का रहता है। पैसेज एंड नोट मेकिंग में आपको क्या करना है, सारा का सारा जितने भी क्वेश्चन, जितने भी आपको पैसेज नोट मेकिंग मिल रहे हैं कहीं से भी, उन सबको है ना प्रैक्टिस कर लेना। जैसे मैं कहूँगा स्कैनर में से करो तो कर लो, नहीं तो लॉ और बीसीआर में स्कैनर करने की, स्वच्छता प्रकाशन का जो स्कैनर मोस्टली लोग करते हैं वो करने की जरूरत नहीं है पैसेज एंड मतलब बीसीआर लॉ में, क्योंकि लॉ एंड बीसीआर में इतना ज्यादा मटेरियल होता नहीं है जो बुक से बाहर जाएगा, तो बुक के अंदर अंदर ही सब कुछ रह जाता है, तो आराम से बुक से काम चल जाता है। ठीक है, मेरे 93 मार्क्स आए थे भाई, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने स्कैनर बिल्कुल भी छुआ नहीं था, मैंने कोई दूसरी चीज नहीं छुई थी, बस केवल वोकैब करने के लिए मैंने, मेरे पास एक लूसेंट की बुक थी वो मैंने करी। ठीक है, वो केवल पढ़ी थी, ऐसा नहीं कि रट रहे हो आप, कि रटने से है ना ऐसा नहीं है कि आपको वही आ जाएंगे, उसमें से ही आ जाएंगे। क्योंकि मेरे जो 4 आए थे उनमें से केवल 1 या 2 थे जो लूसेंट की बुक में से, बाकी 2 सुनोने वगैरह जो होते हैं क्वेश्चंस उसके वो बाहर से थे। तो जरूरी नहीं है जिस जो आप टॉपिक जो आप जिस रिसोर्स से कर रहे हो वोकैब उसी में से आ जाए, बट ऐसा वोकैब जितनी इंप्रूव करोगे बात के लिए फायदा है, तो वोकैब करते रहा करो। जैसे ये कि वोकैब का ये नहीं है कि तुम एक दिन लेके बैठ गए हो गया काम, कि एक दिन में पूरी वोकैब कर लेनी है। वोकैब का ऐसा जैसे हर डे आप बना रहे हो, 15 मिनट, सॉरी 15 मिनट में पढ़ रहे हो वोकैब, जैसे 2-3 पेज पढ़ डाले, 2 पेज पढ़ डाले 15 मिनट में वोकैब। ठीक है, हो गया। सिनोनिम हो गए, एंटोनिम हो गए, समझ आ तो मीनिंग समझ आ जाए। सिनोनिम एंटोनिम में ज्यादा कुछ अंतर नहीं रहता कि तुम सिनोनिम कर रहे हो स्पेसिफिकली या एंटोनिम कर रहे हो स्पेसिफिकली, बस एक बार पढ़ लो, मीनिंग समझ आना चाहिए वर्ड का, हो गया काम, उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, देन वोकैब के बाद अपना वॉइस एंड स्पीच क्वेश्चन, इसमें आपको क्या रूल्स याद होने चाहिए, वॉइस के एक्टिव पैसिव वॉइस एंड या डायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच के रूल्स याद रहने चाहिए। प्रैक्टिस जितनी हो सके करो, जहां से भी आपको वॉइस एंड स्पीच का क्वेश्चन मिल रहा है वहां से करो। आपको ऑनलाइन जाओ, ऑनलाइन है ना
क्वेश्चन सर्च करो, अपने दोस्त है जैसे 4-5 जनों का तुम्हारा ग्रुप बना रहा है, 4-5 जनों का नहीं तो जैसे कोचिंग है, ठीक है, जहां से भी कोचिंग ले रहे हो, वर्चुअल ले रहे हो, वर्चुअल में बन जाते हैं आराम से, 10 जनों का ग्रुप आराम से बन सकता है, ठीक है। बिना ग्रुप बनाया फिर ऐसे ही पूछो ना, कंपटीशन करो अपने आप में कि मेरे को एक क्वेश्चन आता है वॉइस का, स्पीच का एक क्वेश्चन आता है मुझे, ठीक है। टफ टफ क्वेश्चंस पूछो अपने फ्रेंड से, देन आराम से वॉइस या स्पीच हो जाता है, ठीक है। देन आता अपना राइटिंग पार्ट। राइटिंग पार्ट में मोस्टली लोग क्या करते हैं, केवल फॉर्मेट्स करके छोड़ देते हैं, भाई हो गया मेरा फॉर्मेट, मैं कर लूंगा। राइटिंग पार्ट में ऐसा नहीं है। और जो सामने वाला एग्जामिनर है वो क्या देखता है, तुम कितनी अच्छी राइटिंग लिख रहे हो, कितने अच्छे वर्ड्स डाल रहे हो, कितना मतलब उसमें फॉर्मेट तो दिखता ही है, चलो फॉर्मेट के मार्क्स हैं आराम से फाउंडेशन लेवल, बाद में भी तो राइटिंग काम आनी है, ठीक है। अब सीए में तो तुम्हें अब एमबीए वाले क्या करते हैं, केवल प्रेजेंटेशन देखते हैं, ठीक है। ऐसी राइटिंग में भी क्या है, तुम्हारा प्रेजेंटेशन है, तुम क्या वर्ड्स चूज कर रहे हो लिखने के लिए, क्या सेंटेंस चूज कर रहे हो, कैसे सेंटेंस चूज कर रहे हो। तो राइटिंग में क्या प्रैक्टिस भी रिक्वायर्ड है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, केवल फॉर्मेट्स कर लिए, लेटर का फॉर्मेट कर लिया, देखो भाई बिजनेस लेटर ऐसा होता है, फॉर्मल नॉर्मल फॉर्मल लेटर ऐसा होता है, ठीक है, हो गया। अब मैं एक और एडवाइस दूंगा, रिज्यूमे राइटिंग वाला एक टॉपिक है इसमें, ठीक है। अब मोस्टली लोग क्या करते हैं, रिज्यूमे राइटिंग करके चले जाते हैं, ठीक है, बाकी क्वेश्चंस पे ध्यान नहीं देते, जैसे प्रेस राइटिंग कर ली। रिज्यूमे राइटिंग में यार टाइम मत दो, क्योंकि रिज्यूमे राइटिंग में अगर तुम उस टाइम पे पेपर के टाइम पे रिज्यूमे राइटिंग करने बैठोगे ना, कवर लेटर लिखोगे, रिज्यूमे लिखोगे, पूरी बैंड बच जानी है। 2.5 से 3 पेज हो जाता है वो कवर लेटर रिज्यूमे। तो कवर लेटर रिज्यूमे में इतना टाइम निकल जाना है कि बाकी क्वेश्चन से तुम्हारे छूट जाएंगे। तो फालतू में कवर रिज्यूमे राइटिंग में इतना ज्यादा वो मत रहो कि रिज्यूमे राइटिंग कर रहे हो। जरूरी नहीं है रिज्यूमे राइटिंग आ जाए, उसमें मोस्टली आती है रिज्यूमे राइटिंग, ठीक है, फिर भी जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान रखो कि आराम से सारे सारे चीजों की प्रैक्टिस करो। प्रेसेस राइटिंग है जहाँ तक है ना, और मीटिंग्स है, मीटिंग्स भी इजी पड़ता है, एजेंडा है, ठीक है। देखो चैप्टर 6 करना नहीं है, इंट्रोडक्शन टू बेसिक राइटिंग है, इसमें कुछ आता नहीं कोई क्वेश्चन, ठीक है। इसमें केवल नॉर्मली ऐसी थ्योरी दे रखी है, तो वो करने की जरूरत नहीं है। प्रेसिस राइटिंग है, आर्टिकल राइटिंग है, तो आर्टिकल नॉर्मली तुमने 12th में लिखा होगा, रिपोर्ट राइटिंग लिखी होगी, और जहां तक है बहुत सारे लोगों ने प्रेसिस राइटिंग भी लिखी होगी, शायद आती है शायद प्रेसिस राइटिंग। फिर फॉर्मल लेटर्स है, फॉर्मल लेटर्स तो बचपन से लिखते आ रहे हो। देन फॉर्मल मेल्स में लेटर्स की तरह ही होता है, बस मेल का फॉर्मेट डाल देते हैं उसमें, ठीक है। देन रिज्यूमे राइटिंग में बोल रहा हूँ थोड़ा, हाँ ऐसा ही नहीं है कि रिज्यूमे राइटिंग पे फुल डिपेंड हो रहा है, थोड़ा हल्का ही लेके चले। रिज्यूमे राइटिंग में नंबर तो मिल जाते हैं आराम से, फुल तो मैं जैसे 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 5 नंबर मिल रहे रिज्यूमे राइटिंग में। बट है ना, रिज्यूमे राइटिंग में जितना टाइम कंज्यूम होगा ना, वो 10 मार्क्स के आसपास कंज्यूम होगा, 10 से 15 मार्क्स के आसपास। तो फालतू में इतना टाइम देने की जरूरत नहीं है। ये रिज्यूमे राइटिंग में क्या, देखो जॉब आती है, अब तुम्हें जॉब डिस्क्रिप्शन पता है तो ठीक है। अब जैसे तुम्हारा कोई जॉब आ गई, टेक्नीशियन की जॉब आ गई, अब तुम्हें नहीं पता भाई कौन कौन सी डिग्री लगाते हैं, चलो बहुत सारे लोगों को पता होगा, ऐसी बहुत सारी जॉब्स होती है जो तुम्हें नहीं पता कौन कौन सी डिग्री लगाएंगे उसमें। तो उसमें क्या है, फिर उसमें नंबर कटने के भी चांसेस रहते हैं, और फिर तुम उसमें सोचोगे जितना उतना बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। चलो ठीक है, जैसा भी है, अभी पेपर थर्ड पे आता है, ठीक है। पेपर थर्ड में है ना, 3 पार्ट्स हैं, बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैट्स, ठीक है। बिजनेस मैथमेटिक्स से स्टार्ट करेंगे। बिजनेस मैथ का फर्स्ट चैप्टर है रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडेक्स एंड लॉगरिथम। मैं कहूंगा सबसे इजी चैप्टर है इसका। एंड देन लीनियर इक्वलिटीज, ये भी इजी चैप्टर है। इक्वेशन मैट्रिक्स थोड़ा सा टफ चैप्टर पड़ता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कर लो आराम से हो जाता है, ठीक है। फिर भी मैट्रिक्स वगैरह अगर तुम्हें प्रॉब्लम आ रही है छोड़ दो, ठीक है। अगर भाई बहुत सारे लोग का होता है बीएमआरएस में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है, सबसे ज्यादा लोग बीएमआरएस में फेल होते हैं। मेरे फ्रेंड थे, उनके सबसे कम मार्क्स बीएमआरएस में आए, तो ठीक है। बहुत सारे लोग अभी तक, मतलब अभी तक मेरे अटेम्प्ट के बाद अभी तक फाउंडेशन उन्होंने 2 अटेम्प्ट किए, बीएमआरएस में ही अटक के रह गए। बहुत सारे लोग होते हैं, मैं जानता हूँ बीएमआरएस में मॉक टेस्ट भी देते हैं, तो मॉक टेस्ट में आ रहे हैं 50-60 मार्क्स, लेकिन उस टाइम पे नहीं ला पाते, ठीक है। क्योंकि आईसीए का क्वेश्चन का लेवल भी ठीक होता है, ऐसा बेकार नहीं होता। बीएमआरएस में बहुत सारे लोग अटक जाते हैं यार, क्या है, जैसे या तो टाइम ज्यादा दे रहे हैं, क्वेश्चन जल्दी सॉल्व नहीं हो पा रहे, लंबे क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम लगा रहे हैं पहले, तो क्या बात के क्वेश्चंस पे पहुंचते पहुंचते जिनकी मैथ कमजोर होती है ना, वो कहते हैं भाई मेरे पे नहीं हो रहा, मेरे पे नहीं हो रहा। उस चक्कर में देखो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस होते हैं, वो थोड़े ट्रिकी से होते हैं, वो तुम्हारे खराब हो जाएंगे। एपीजीपी वगैरह वाले क्वेश्चंस होते हैं, वो थोड़े से हल्के से ट्रिकी होते हैं, वो खराब हो जाएंगे। सेट सिलेक्शन फंक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं, ट्रिकी होते हैं, वो खराब हो जाएंगे। टाइम वैल्यू ऑफ मनी में तुम भाई कैलकुलेटर से कर रहे हो, तुम्हारा हाथ नहीं चल रहा ढंग से, घबराहट हो रही है, नहीं हो पाएंगे। तो सबसे पहले मैं कहूंगा बेसिक मैथ सॉल्व करो। टाइम लगेगा, मान लिया भाई जिनकी मैथ कमजोर है उनको टाइम लगेगा, कैलकुलेटर पर कमांड बना के रहो, प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की, कैलकुलेटर पर कमांड बनी। अब सबसे पहले मैं चैप्टर वाइज स्टार्ट करूंगा। देखो भाई बीएमआरएस में सबसे ज्यादा लोग फेल होते हैं, तो मैं चैप्टर वाइज स्टार्ट करूंगा। बीएमआरएस सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट लगता है बहुत सारे लोगों को।
तो सबसे पहले बिजनेस मैथमेटिक्स चैप्टर फर्स्ट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इंडेक्स एंड लॉगरिथम। जीएस चैप्टर है, आराम से हो जाएगा। जो तुम्हारा आईसीएसएम है उसकी फुल सारे क्वेश्चंस सुन लो। एसएम की मेरे को ध्यान है शायद तीनों चैप्टर, रेशियो प्रोपोर्शन का, इंडेक्स एंड लॉगरिथम का 3 एक्सरसाइज है शायद। देन फिर एक एडिशनल क्वेश्चन बैंक, एडिशनल क्वेश्चन में बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं, मत छोड़ो भाई, इंपॉर्टेंट है। एक बार तुम्हारा फाउंडेशन हो जाएगा, आराम से इंटर के लिए बढ़ोगे, छोड़ने का फायदा क्या है, ठीक है। मैथ में मत छोड़ो, बाकी तुम जैसे थोड़ा बहुत और सब्जेक्ट में थोड़ा छोड़ सकते हो, जैसे बहुत सारे लोगों को प्रैक्टिकल अकाउंट्स पसंद है, अकाउंट्स ही अकाउंट्स कर रहे हैं, बीएमआर पे ध्यान नहीं दे रहे, वो फॉर्मूला पढ़ लिया हो गया काम, भाई मैं क्वेश्चंस नहीं कर रहा, प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ, ऐसा मत करो, ठीक है। अकाउंट्स में पढ़ रहे हो, ठीक है यार, तुम्हारा प्रैक्टिकल है, ठीक है, पसंद है तुम्हें, पढ़ लो नॉर्मली। लॉ है, बहुत सारे लोगों को थ्योरी पसंद नहीं है, भाई करो थ्योरी, थ्योरी में ऐसा नहीं कि एक रिवीजन से काम चल जाएगा। जिनको प्रैक्टिकल पसंद है ना, उनको थ्योरी का रिवीजन कम से कम 5 बार करना पड़ता है। मेरे को खुद को याद है, मेरे को पार्टनरशिप अकाउंट याद नहीं होता था, मैंने कम से कम 6 से 7 बार रिवीजन किया पार्टनरशिप अकाउंट से। मेरे दोस्त कहते थे भाई मेरे को पूरा याद है पार्टनरशिप, और याद भी होता, मेरे को याद ही नहीं होता थ्योरी। भाई थ्योरी में अभी इंटर में बैंड बनती है थ्योरी, इसका ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिकल पे ध्यान दे रहे हो, फाइनल और इंटर में इतनी जो थ्योरी आती है ना, पूछो मत। तो इसलिए मैं पहले बोला थ्योरी पे कमेंट बनाना स्टार्ट कर दो, जो लोग सोच रहे हैं भाई अभी प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल है, थ्योरी ज्यादा नहीं है, केवल लॉ एंड बीसीआर है, तो इकोनॉमिक्स और बीसीके में थ्योरी कहूंगा नहीं, ज्यादा नहीं है, नॉर्मल एमसीक्यू होते हैं, क्या थ्योरी होती है यार, एमसीक्यू में शॉर्ट नोट सुना रहे हो गया काम, ठीक है। लॉ एंड बीसीआर थ्योरी है, बहुत सारे लोग ध्यान नहीं देते, बस ऐसा है कि थ्योरी पे कमांड नहीं बनाते, अब प्रैक्टिकल पे ध्यान दे रहे हैं, वो मत करो, क्योंकि इंटर और फाइनल में जितनी थ्योरी आएगी ना, वो तुम्हारे 3-4 अटेम्प्ट लगा देगी, अगर तुम थ्योरी पे ध्यान नहीं दे रहे तो, ठीक है। मेरे साथ भी ये गलती हुई थी, मतलब ऐसा है कि मैं थ्योरी पे ज्यादा फोकस नहीं करता, तो अभी इंटर एंड फाइनल में, इंटर के एग्जामिनेशन में थ्योरी के पेपर्स अच्छे बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो अब रेशियो प्रोपोर्शन, इंडेक्स एंड लॉगरिथम में एजीएस चैप्टर है, एजीएस चैप्टर आराम से हो जाएगा। देन इक्वेशन मैट्रिक्स, इक्वेशन और मैट्रिक्स दो पार्ट है इसमें, ठीक है। इक्वेशन मैट्रिक्स, इक्वेशन नॉर्मली सब लोगों को मोस्टली आता है। देन मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में क्या है, नया टॉपिक पड़ेगा, जिनको जो इकोनॉमिक्स फील्ड्स है 11 12 में, मैथ वाले वो आराम से मैट्रिक्स कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा टफ पड़ता है, करो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम हो करो आराम से, प्रैक्टिस करो। लेकिन ऐसा नहीं है कि ज्यादा वो है कि ज्यादा ही ध्यान देना है, क्योंकि देखो भाई जो मैथ मैथ जिनकी कमजोर है वो मत ध्यान देना है इतना, ठीक है। तो देन आता है लीनियर इनइक्वालिटीज, इजीएस्ट चैप्टर है, आराम से हो जाता है। लीनियर इनइक्वालिटीज, टाइम वैल्यू एंड मनी, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बिल्कुल मत छोड़ के जाना। जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने को मिल रहे हैं प्रैक्टिस करना, कैलकुलेटर पर फुल कमांड बना लेना, हाथ ऐसे चलने चाहिए जैसे मोबाइल की चैट पे चलते हैं, व्हाट्सएप चैट, ठीक है। कैलकुलेटर पर बिल्कुल बिना देखे क्लिक हो रहा है बटन, क्योंकि टाइम वैल्यू ऑफ मनी में जितना तुम्हें ध्यान जाना है ना, उतना पूछो मत। अच्छा मैट्रिक्स नहीं है, ओके, मेरे पास अभी क्या है, ये पुराना पड़ा था, देन मैट्रिक्स नहीं होगा भाई, ठीक है। अभी हाँ मैट्रिक्स नहीं है, इक्वेशन से केवल, ठीक है, ओके फाइन। अब टाइम वैल्यू ऑफ मनी, सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन ज्यादा आते नहीं है, नॉर्मल नॉर्मल चीज है, कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। डेप्रिसिएशन आता है, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, देन प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। सिंकिंग फंड्स के एक चैप्टर है, वो तुम आराम से आईसीए के, एक तो एसएम, एमटीपी आरटीपी, देखो मैथ में ना एमटीपी आरटीपी में बहुत सारी गलतियां दे रखी है, तो मैं प्रेफर नहीं करूंगा कि एमटीपी आरटीपी करो, कर लो, क्योंकि यार देखो क्वेश्चन जब करने को प्रैक्टिस मिलती है ना, अगर तुम्हारी मैथ कमजोर, क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस मिलेगी ना, बहुत कमांड मिल जाएगी, तो तुम्हें लगेगा नहीं तुम्हारी मैथ कमजोर है, आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम्स आ रही है तो मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा, देखो आज है ना इतने सारे टेलीग्राम ग्रुप है, तो मैं मेरा टेलीग्राम ग्रुप वो करूंगा अभी शेयर, ठीक है। ये हमें मैं इसका को फाउंडर हूँ, इस पे क्या है, बहुत सारे नोट्स मिल जाएंगे तुम्हें। देन ये सीए वाले नोट्स के नाम से हमने बनाया था। देन मैथ एंड जो पेपर 3 और 4 है, इसके लिए देखो, एक सेकेंड मेरे को याद नहीं है, मेरा एक सेकेंड जरा रुको। इट इज इट इज सीए फाउंडेशन पोल्स के नाम से, इस पे क्या क्विजेज ही क्विजेज, आराम से इतने सारे क्वेश्चंस करने को मिलेंगे, पूछो मत, स्कैनर्स के बराबर क्वेश्चंस मिल जाएंगे इस वाले चैनल पे, ये सीए फाउंडेशन पोल्स के नाम से है, ठीक है, सीए फाउंडेशन पोल्स, ओके।
देन अभी क्या है, जो डिस्कशन ग्रुप है हमारा, देखो मोस्टली लोग हमारे जो फाउंडर्स वगैरह थे वो क्या थोड़ा डाउन है अभी डिस्कशन ग्रुप। तो डिस्कशन ग्रुप पे क्या है, क्वेश्चन टेलीग्राम पे इतने सारे डिस्कशन ग्रुप है, मैं बोलूंगा 30 to 40 इतने सारे अच्छे अच्छे डिस्कशन ग्रुप है। आप क्वेश्चन पूछोगे आराम से आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चंस पूछो आराम से, बहुत सारे लोग मिल जाते हैं टेलीग्राम पे, ठीक है। क्वेश्चंस पूछो, बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे, दूसरों के डाउट सॉल्व करो। आपको क्या नया क्वेश्चन मिलेगा ना, तो आपको खुद को चैलेंज मिलेगा कि भाई मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँ, ये बंदा क्वेश्चन पूछ रहा है मेरे से, मेरे को आना चाहिए क्वेश्चन, ये पूछ रहा है तो मेरे को भी आना चाहिए, मेरे को क्यों नहीं आता है क्वेश्चन, ठीक है। चैलेंज करने को मिलेगा, आराम से क्वेश्चंस करो बहुत सारे। सबसे ज्यादा डाउट्स आते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी में, क्योंकि टाइम वैल्यू ऑफ मनी में क्या है, कई जगह थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है क्वेश्चन, तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है या फिर गलत आंसर दे रहा होता है, ठीक है। तो टाइम वैल्यू मनी मैथ में क्वेश्चंस आते हैं बहुत है, आप पूछो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मेरे को टेक्स्ट कर दो, नहीं तो मैं भी बता दूंगा अभी तक याद है क्वेश्चंस, ठीक है। अभी टाइम वैल्यू मनी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, मेरे को ऐसा ध्यान है, बहुत तगड़ा वेटेज है इसका। जस्ट वेट फॉर अ सेकंड। It has 30 to 40% weightage. That means 30 to 40 marks. Sorry, 30 to 40 marks नहीं यार, 60% का 30%, 8-10 मार्क्स के आसपास वेटेज हो गया, ठीक है। सॉरी, 40 का 30%, 12 मार्क्स का वेटेज हो गया, 12 to 16 मार्क्स का, ठीक है। तो 15 मार्क्स के आसपास के क्वेश्चंस फंस जाते हैं टाइम वैल्यू जैसे, ठीक है। तो इसकी इतनी प्रैक्टिस करो ना, क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस करते रहो भाई। देन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, ठीक है। सीक्वेंस परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन मोस्टली लोगों ने 10th में तो नहीं था शायद, आई थिंक 10th में नहीं था परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, हायर सेकेंडरी में था, 11th क्लास में। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है यार, देखो थोड़ा सा स्टार्टिंग जब तुम समझोगे ना, थोड़ा सा ट्रिकी लगेगा, बाद में जब तुम्हारे एक बार समझ आ गया, टॉपिक समझ आ गया, क्वेश्चन समझ आ गए, देन आराम से फुल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन निकल जाता है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस का मैं सजेस्ट करूंगा, देखो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस में एक टाइप के क्वेश्चंस नहीं आते, इसकी सारी एक्सरसाइज करो, देन एडिशनल क्वेश्चंस में एंट्री करो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सारे। देखो मैथ में तो मैं बोलूंगा सारे चैप्टर्स के एडिशनल क्वेश्चन में करोगे, जितनी प्रैक्टिस करने को मिलेगा हो जाएगा। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस के मैं बोलूंगा अदर रिसोर्सेज, जैसे बहुत सारी वो है यार कोचिंग इश्यूज, उनके क्या रिसोर्सेज आराम से टेलीग्राम पे मिल जाते हैं, ठीक है। रोज रिवीजन कैसे करें, कैसे मैनेज करें, देखो मैथ में मैं नहीं कहूंगा रोज रिवीजन करो। मैथ में जैसे तुम्हारी यार कोचिंग चल रही है, ठीक है। अब देखो मेरी कोचिंग में क्या था, मेरे सुबह 6 बजे से कोचिंग लगती थी, 6 से 10:30 के आसपास कोचिंग लगती थी, क्लास के साथ है ना। रोज रिवीजन कैसे करें, अब देखो कई कई जगह देखो, मैं अभी इंटर की क्लास मैंने बीएसएस की थी, विद्यासागर इंस्टीट्यूट जयपुर। उसमें क्या था भाई, हमारी 8 घंटे क्लास लगती थी, हमें रिवीजन करने, सेल्फ स्टडी करने का टाइम निकलता था, होमवर्क करने को मिल जाता। मेरे वहाँ पे क्या है, फाउंडेशन वाले बहुत सारे बच्चे लड़के थे, वो जानते थे, तो उनसे बात होती रहती है, तो वो कहते थे 6 से 7 घंटे क्लास चलती है भाई, तुम्हें रिवीजन का टाइम नहीं मिलता। हाँ है यार, देखो अब सबका अलग अलग रहता है कैसे करना है। मेरे साथ क्या रहता है कि मैं ना कोचिंग क्लास के साथ साथ सेल्फ स्टडी करता हूँ, देन रिवीजन का टाइम सेल्फ स्टडी में ही वो रिवीजन हो ही जाता है, ठीक है। बहुत सारे लोगों के साथ रहता है भाई, पहला पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया, देन रिवीजन का रिवीजन कर रहा है, 5 से 6 रिवीजन कर रहा है। फाउंडेशन कोर्स ज्यादा नहीं, आराम से रिवीजन हो सकता है, 6 से 7 रिवीजन आराम से हो सकता है। बट क्या है भाई, बहुत लोगों का अलग रहता है। मेरे साथ मैं बताऊं मेरा क्या रहता है, मेरे को 1-2 रिवीजन इनफ रहता है। We have only 5 minutes now. Oh, oh. Then let's share another link. Just wait a second. Hey guys, just wait a second. I will share another Zoom link. Then you may join. ठीक है? Just wait a second. Then I will continue strategies because it's important for all of you. है ना? Schedule 11:45, 11:30 की just wait a second, man. How to schedule that? चलो मैं ना अभी सर विशाल सर सर काम करते हैं। टाइम सर इफ यू हैव टाइम नई जूम मीटिंग शेयर कर दीजिए, क्योंकि सर अभी स्टडीज बची है जो भी है। ओके 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 ओके, अभी वैसे इफ अपने यू पास हैव टाइम फॉर we have 5 to 7 minutes right now. you said we have 8 minutes now. Yeah, so So I would continue. okay, if you can complete in 8 minutes, then it will be fine. Otherwise, yeah, we can create a new meeting, or we can schedule the next meeting for after a few days, or
maybe tomorrow. It's up to you, right? Sir, what about अभी कल है? I No. would share. I would just wait a second. वैसे तुमने काफी अच्छे टिप्स बताए. आई एम नॉट फ्रॉम अ सीए बैकग्राउंड, बट मुझे भी काफी समझ में आ रहा था तुमने जो बताया. So it's a basic for who are studying for joining CA course. Yeah. So it's most important about CA foundation. Mm-hmm. Just wait, I would share a link on chat. Hey guys, I am sharing a WhatsApp link here. So you may join this group. We would share Zoom meeting after this meeting, Zoom meeting ID after this meeting ends, so that you can join the new meeting. Okay. So now I will continue about we were at the CF foundation about BCK. Okay. BCK नहीं business math. ठीक है. बिजनेस मैथ्स में हम क्या आते हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन. ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपको मैंने बता दिया था. स्क्रीन शो हो रही है? हाँ. ओके. देन सीक्वेंशियल सीरीज. ओके, सीक्वेंशियल सीरीज में आप एपी मोस्टली एपीजीपी आप 10th में पढ़ के आते हो. एपीजीपी के बाद एचपी और आ जाता है. ठीक है. एपीजीपी एचपी में ऐसा है क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करो ना करो बट क्या है फॉर्मूलेज याद होने चाहिए, आराम से निकल जाता है एपीजीपी एचपी. देन सैचुरेशन फंक्शन जो इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से 11 12 उनके लिए बिल्कुल नया टॉपिक सा मिलता है. सैचुरेशन फंक्शन में क्या रहता है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना हो जाएगा. कॉन्सेप्ट समझ में पूरे ढंग से आना चाहिए. अगर कॉन्सेप्ट का अगर तुम ये कह रहे हो ना कि क्वेश्चन करने से काम चल जाएगा, नहीं भाई, इस चैप्टर में नहीं चलेगा सैचुरेशन फंक्शन में. इसमें क्या होता है क्वेश्चंस मोस्टली यूनिट टाइप के होते हैं, ज्यादातर नहीं होता क्वेश्चंस में. ठीक है. सैचुरेशन फंक्शन में केवल कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना भाई, काम हो जाएगा. ठीक है. हाँ, एलआर में स्लोगिज्म अभी नहीं है. हाँ, मेरे को पता चल गया था वो तो. ठीक है. एंड देन ये डिफरेंशियल इंटीग्रल कैलकुलस. भाई जो इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड के मेरे जैसे उनको बहुत दिक्कत आती है. मैं इंटीग्रल कैलकुलस छोड़ के गया था, डिफरेंशियल करके गया था. केवल 4 क्वेश्चन आते हैं. भाई मैं कहूंगा अगर तुम्हारी मैथ कमजोर है बिल्कुल मत छेड़ना, बिल्कुल मत छेड़ना. अगर तुम इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से मैथ कमजोर है बिल्कुल मत छेड़ना इस चैप्टर को. क्योंकि देखो तुम्हारा सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूम करेगा ये क्वेश्चन करने में. ठीक है. डिफरेंशियल इंटीग्रेशन कैलकुलस के आई थिंक 4 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं आते, 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं. ठीक है. ये क्वेश्चंस कम से कम है ना तुम्हारा 10 से 15 मिनट खा देंगे भाई. 15 क्वेश्चन 10 क्वेश्चंस के बराबर सा टाइम खा देंगे. मत करो यार इतना. ठीक है. 10-12 क्वेश्चंस के आप बराबर सा टाइम खा देंगे तो इतना क्यों कर रहे हो यार 4 क्वेश्चंस के लिए 4 मार्क्स के लिए. मत करो डिफरेंशियल इंटीग्रल कैलकुलस. ठीक है. टाइम भी बहुत खाएंगे तुम्हें समझने को जो इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से. मत करो. ठीक है. देन लॉजिकल रीजनिंग. लॉजिकल रीजनिंग में क्या रहता है, नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ऑड मैन आउट है. इसमें देखो कॉन्सेप्ट ज्यादा है नहीं. स्लोगिज्म में तुम्हारा कॉन्सेप्ट आता था, बाकी तो अब ये डायरेक्शन टेस्ट, सीटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, स्लोगिज्म में कॉन्सेप्ट आता था, वो अब चैप्टर हटा दिया. ठीक है. अब बाकी 4 चैप्टर बचे. उसमें क्या रहा, तुम्हें सब कुछ आता ही है भाई, होता क्या है समझ आती है. ठीक है. ज्यादा तुम्हें क्या है डायरेक्शन टेस्ट, डायरेक्शन एक बार समझ लो भाई, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, वगैरह वगैरह. देन ब्लड रिलेशन में तुम ये समझ लोगे नीस किसको बोलते हैं. ठीक है. वो नॉर्मली सबको पता रहता है, फिर भी जिनको नहीं पता वो समझ. इसमें क्या रहता है तुम्हारे एसएम में क्वेश्चन दे रहे हैं, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं दे रहे, प्रैक्टिस करने को नहीं होगा. ठीक है. एसएम के क्वेश्चंस, एमटीपी, आरटीपी, पीवाई, ये 3 चीज 4 चीज तो हुई. ठीक है. उसके बाद स्कैनर के क्वेश्चंस. स्कैनर्स में आई थिंक 100 के आसपास क्वेश्चंस मिल जाते हैं हर टॉपिक से. ठीक है. आराम से स्कैनर्स के क्वेश्चंस करो. स्कैनर्स के क्वेश्चंस के अलावा देखो यूपीएससी एसएससी वाले क्वेश्चंस होते हैं, मैंने किए थे कुछ क्वेश्चंस, तो साइट पे क्या है बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं. ब्लड रिलेशन, सीटिंग अरेंजमेंट वगैरह इन चीजों के बहुत अच्छे क्वेश्चंस मिल जाते हैं. और मैं कहूंगा जो मैंने अभी तुम्हें एक ग्रुप लिंक शेयर किया था ये सीए फाउंडेशन कोर्स के नाम से. ठीक है. उस पे भी इतने सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे. आराम से करो, प्रैक्टिस करो भाई. लॉजिकल रीजनिंग में 20 मार्क्स का आराम से 20 मार्क्स निकल जाते हैं. 20 के 20 आते हैं लॉजिकल रीजनिंग में, ज्यादा 1 मार्क्स कट जाएगा. ठीक है. क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग इजी है, थोड़ा दिमाग ही तो लगाना है. हाँ टाइम लगेगा मान लिया भाई, लेकिन तुम्हें मैथ का, जिनकी मैथ कमजोर है उनके लिए लॉजिकल रीजनिंग है ना एक नाव की तरह है, आराम से पार हो जाती है. ठीक है. 20 मार्क्स 20 में से 20 आ जाएंगे. थोड़ा सा टाइम लगेगा. हाँ मान लिया भाई जिनका दिमाग नहीं चल रहा, प्रोसेस नहीं कर रहा जल्दी, तो 20
20 मार्क्स के क्वेश्चन आराम से 20 मिनट में हो जाने चाहिए, ठीक है। लेकिन हाँ, लग जाते 30 मिनट लग जाते, करो कोई बात, लेकिन लॉजिकल रीजनिंग ढंग से करो, ठीक है। देन स्टेट्स में क्या रहता है, लोग है ना केवल है ना फॉर्मूला कर रहे हैं, फॉर्मूले से होगा, ठीक है। जैसे तुम्हारे वेरिएंस आ रहे हैं, मीन डेविएशन, क्वार्टाइल वगैरह, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन, इनके फॉर्मूले हो गए, क्वेश्चन जो दे रहे हैं बुक में हो गए, लोग करते ही नहीं है थ्योरी। हमारे टाइम पे क्या रहा था, स्टेट्स की जो थ्योरी आई थी ना, हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था न्यूमेरिकल क्वेश्चन, जैसे 40 मार्क्स का था ना, 10 मार्क्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, बाकी 30 नंबर की थ्योरी थ्योरी। अब सोचो भाई हमारी बैंड बजी थी उसमें ठीक है, हम थ्योरी करके गए थे बट उतनी नहीं करके गए थे, तो थ्योरी में ध्यान दो। अब देखो कंफर्म नहीं है, देखो अभी मेरे को ऐसा ध्यान है, जो मई वाला अटेम्प्ट था, जो जुलाई 2021 वाला अटेम्प्ट हुआ था, उसमें थ्योरी क्वेश्चंस कम आए थे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आए थे, जो एक्सरसाइज सी की मैं बोलता हूँ। एक सेकंड, जस्ट अ मिनट। देखो मैंने यहाँ पे भी लिखा है ये, डू नॉट डू एक्सरसाइज सी इन ईच चैप्टर। एक्सरसाइज सी में क्या हो रहता है, हाईएस्ट बड़े बड़े क्वेश्चन रहते हैं एकदम फुल लेवल के, ठीक है। अब कई बार देखो तुम्हारी किस्मत है, नहीं आ रहे उस चैप्टर क्वेश्चन बढ़िया है, ठीक है। अब कई बार जुलाई 2021 में मेरे को याद है, मैंने किसी से पूछा था कि क्वेश्चंस कैसे आए थे, तो बोल रहे थे भाई एक्सरसाइज सी में से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। तो ठीक है यार, देखो कर लो, बट मैं प्रेफर नहीं करूंगा कि एक्सरसाइज सी करो, क्योंकि उस टाइम पे अगर तुम करने बैठोगे ना एक्सरसाइज सी की क्वेश्चंस, फालतू में बहुत टाइम वेस्ट होगा। देखो अब देखो, देखो अपने पास टॉपिक्स क्या क्या है। टॉपिक्स है अपना, फर्स्ट है ये स्टैटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा। इसमें क्या रहता है, फुल थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगॉन हो गए वगैरह, ठीक है। ये वाले क्वेश्चंस है स्टैटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा में। देन मेजर ऑन सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्क्रिप्शन डिस्पर्शन, ठीक है। इसमें मीन मीडियन मोड वगैरह है, डेविएशन, क्वार्टाइल वगैरह है। इसमें मोस्टली प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं, इसमें थ्योरी के क्वेश्चंस कम ही हैं, लेकिन जो एडिशनल क्वेश्चन बैंक दे रखा है, एडिशनल क्वेश्चन बैंक दे रखा है। Punit, ये I have सब shared the new link on WhatsApp group, so please join that group. तो गाइस, हम वो वाली मीटिंग स्टार्ट करें, ये वाली मीटिंग एंड कर देंगे, ये वैसे भी बीच में खत्म हो जाएगी। ओके गाइस, उस वाली मीटिंग को ज्वाइन कर लो, उसको लीव करके।